Now, from D3, I hope so. This is the this stuff from D3 or D2. Uh, I'm not remembering very well, but now we are discussing about. Actually, we are discussing about functions, relation, and function. These concepts are from D3, D1, starting from D1, then I think D2, and finally from D4. So we are doing D1 concept. Already we are doing D1 concept. I already sent you a video of that one. And now we are discussing from D2. And inshallah, today we will discuss D3 as well. Okay, Duaila is now here. Okay, now I already told you about relation and function, but let me give you another way to express relation as they describe us. Let me do that. Okay, actually, uh, before function, we should know about relation. Okay, finally, do I love? Can you hear me? Do I love? Can you hear me? Quickly. Yes, sir. Okay, now इनकी आवाज तो आई है मेरे पास चलो ठीक है okay now relation and function relation actually it's a rule between two sets relation if I say stand for R it's a rule between two sets first set is known as domain and second set is known as codomain. Look, here is some relation. I don't know. Okay, Ahmad is a husband of. Okay, Ahmad is a husband of Fatma. Kumar is a husband of, because they're writing a rule here. The rule is here. Kumar is a husband of Devi. Mangling, I don't know what they will pronounce it, is a husband of Shohyu, I don't know what they pronounce it, but this person is a husband of this person, and David is a husband of Jane. So there is a relation between two set. First set is known as domain, and domain have a element Ahmad, Kumar, and this precious name I can't pronounce yet very well, and David. And this codomain set contain wife name and they are also of four elements. Do you understand, Bacho? Till here, do you understand? Hello? Yes, sir. Yes, sir. If you understand, kindly thumbs up quickly. Thumbs up. Yes, sir. समझ में आ गया. Okay. If you have any kind of difficulty, you may raise your hand. Okay. Acha ji. Now, we have these kind of relations, and these relation will call function if they follow two rules. I will give you a definition of a function later, but this is simply a relation. And function is one kind of relation. Function is also a one kind of relation, but they follow two rules. Most important is here, the first set is domain, and the second set is codomain. Now, let's move further. Let's move further and tell you further about domain and codomain. Look, here also one kind of a relation. We have a set A and is a friend of. Ali is a friend of Peter. Erevin is a friend of Amila, like this one. So this set is known as domain and this set is known as codomain. I will say that this is a relation between two sets, set A and set B, and having a rule is a friend of. So set A and B have a rule is a friend of. So they map like this. This is one kind of a mapping. Ali map to a Peter, Erwin map to a Corol, John map to a Maria. And I will say in a graphical notation, I will say that
and I already told you about graphical notation of an order pair, like Ali is x-axis element and Peter would be y-axis element. So this is the representation in a order pair. This is the representation simply in a order pair. Okay, let me move further, and if I combine this this all element to a set, we will say that this is domain set, first domain set, and this is codomain set. Okay, I hopefully you will understand these things. This is not very much difficult. This is easy. Now we already know about, okay, yeah, we know about relation. Relation actually is a rule between two set, but when one relation is called function, this is really simple. This is really simple. Look above example. If we see above example, Ali is a friend of Peter, and Erwin is a friend of Amara, and Envy is also a friend of Carol. But in function, we don't have two maps. Whenever we have such a relation that they don't have two maps in a domain, like look, here is a two maps. Erwin goes to Carol and Erwin goes to Amara. So this is known as a relation. But relation, if relation follow like this rule, 1 tends to B, 2 tends to C, and 3 tends to A, these relations are known as function. बच्चों ये बात समझ आ गई? हेलो, जिसको बात Yes, समझ Yes, आ sir. गई? ओके, सो नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू देख कि भाई दोनों में फर्क क्या है. दोनों में फर्क क्या है? रिलेशन में डोमेन के एक से ज्यादा मैप हो सकते हैं, मगर फंक्शन में, यानी वो भी एक किस्म की रिलेशन होती है, मगर वो रिलेशन क्या फॉलो करती है? डोमेन एक के पास ही मैप करेगा, एक से ज्यादा के पास मैप नहीं करेगा. और डोमेन पूरा का पूरा यूज होना चाहिए. जैसे 1 बी के पास गया है, 2 सी के पास गया है, और 3 ए के पास गया है. तो ये एक ऐसी रिलेशन है जिसको मैं नाम दे सकता हूं फंक्शन. बट जहन में रखेंगे, फंक्शन रिलेशन होता है, पर इट नॉट नेसेसरी कि हर रिलेशन फंक्शन हो. पर हर फंक्शन रिलेशन तो होता ही होता है, क्योंकि वो उसकी एक रिलेशन की एक प्रॉपर्टी, फंक्शन की एक प्रॉपर्टी लेके ओबे करता है. ओके, दोस्तों जल्दी से बताना, ये फंक्शन है या रिलेशन है? सन फादर, ये फंक्शन है या रिलेशन है? relation है. Sir, relation. एग्री करते हैं ये रिलेशन है? Yes, sir. जो ये रिलेशन एग्री करते हैं, थम्स अप कर दें. Okay, fine. Tell me about this. Is this a relation or a function? Yes. Sir, function. फंक्शन. अच्छा, लुक इंटरेस्टली बेटा, फंक्शन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डोमेन के हर एलिमेंट यूज होना चाहिए, और डोमेन का एलिमेंट एक दफा यूज होना चाहिए. बेशक को डोमेन के एलिमेंट्स बच जाएं, कोई मसला नहीं होता आपके पास. तो ये किस किस्म का फंक्शन है? अगर मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिखाऊं, ए कंबाइन कर रहा है 40 के पास, बी कंबाइन कर रहा है 70 के पास, सी कंबाइन कर रहा है 50 के पास, और डी कंबाइन कर रहा है 60 के पास. तो डेफिनेटली ये फंक्शन है. बेशक डोमेन में, को डोमेन में एलिमेंट्स बच गए, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है. बेटा जी एक और वर्ड सुन लीजिए, जो डोमेन को डोमेन के एलिमेंट रखता है एज देयर इमेज, इसको हम कहते हैं इमेजेस. ए की इमेज 40 है, बी की इमेज 70 है, सी की इमेज 50 है, एंड डी की इमेज 60 है. तो इसको हम इमेज कहते हैं. ये जो इमेज सेट होता है, जो ए सेट कंटेन करता है, इसको हम नाम देते हैं रेंज का. यानी इस वक्त हमारे पास रेंज क्या है? रेंज हमारे पास है 40, 50, 60, 70. ये हमारे पास रेंज सेट है, 40, 50, 60 एंड 70. और हमारे पास कोडोमेन सेट क्या है? कोडोमेन सेट हमारे पास 10 से लेकर 70 तक है. रेंज और कोडोमेन बराबर भी हो सकते हैं, और रेंज सबसेट यानी हिस्सा हो सकता है कोडोमेन का.
ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, चलें, ये मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। अब जब मैंने आपको ये बता दिया यार कि इसको हम इमेज कहते हैं, इस वाले एलिमेंट को, सेकंड एलिमेंट को, तो पहले एलिमेंट का भी कोई नाम होना चाहिए। इसको हम कहते हैं प्री इमेज। प्री इमेज यानी इमेज की प्री इमेज। तो पहले एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं प्री इमेज और दूसरे एलिमेंट को हम नाम देते हैं इमेज। वैसे इसके और भी नाम होते हैं, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे तो मैं आपको और मजीद नाम बताऊंगा, पर फिलहाल फंक्शन की जबान में हम इसको कहते हैं इमेज एंड प्री इमेज। दोस्तों, जिस जिसको मेरी यहां तक बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें क्विकली। सर ये जो पेड़ा वाला है, सन्स और फादर का, हाँ हाँ, ये रिलेशन है या फंक्शन? ये रिलेशन है बेटा, क्योंकि आप नोटिस करें, पीटर पीटर, अब पीटर बेटा है ए का, जेन बेटा है ए का। अब क्या है आपके पास, कौन सा लेट मी, इन सबको एक दफा यूज हो रहा है, ये डोमेन एक दफा यूज हो रहा है। देखूं, यस सर। पीटर एक दफा हो रहा है, जेन एक दफा हो रहा है, बिल्कुल ये फंक्शन है। पार्डन भी बच्चों, ये फंक्शन है, क्योंकि डोमेन एक दफा यूज हो रहा है। बेशक ये रिपीट हो जाए कोई मसला नहीं है, ये रिपीट हो जाए कोई मसला नहीं है, पर डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। बच्चों, ये वाली बात समझ आ गई? हेलो यस हेलो सर। हेलो, यस सर। यानी डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये भी फंक्शन है। मगर अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। क्योंकि एरविन देखें, कैरोल के पास भी जा रहा है, अमरा के पास जा रहा है। सिमिलरली ये आपके पास, ये भाई साहब इसके पास भी जा रहा है, इसके पास भी जा रहा है, इसके पास जा रहा है। इसलिए सिर्फ रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई है। दिस इज रियली अ सिंपल कॉन्सेप्ट। मैं शायद थोड़ा तफसील से बात कर रहा हूं। चले आ जाएं, जल्दी से बताएं कौन सा फंक्शन है, कौन सा रिलेशन है। हेलो, ए के बारे में बात करें, फंक्शन है या नहीं? जल्दी सर बच्चों। यस फंक्शन सर है। फंक्शन। अच्छा, फंक्शन है यार। आगा मुझे बताना ए की डोमेन क्या है, ये पहले वाले फंक्शन की डोमेन क्या है? जल्दी सर आगा। डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वाई जेड। यार वाजिद, मुझे बताना इसकी कोडोमेन क्या है पहले वाले फंक्शन की। दिस इज इंटरेस्टिंग। वाजिद बताना कोडोमेन क्या है। वाजिद जल्दी। वाजिद, मेरी आवाज आ रही है दोस्त आपके पास? वाजिद बोल रहे हैं शायद, पर आई डोंट नो। ओके, यार इलाफ बताना बताना इसकी। या इस्माइल, इलाफ नहीं है क्या? नो। वो कहां पर है? जल्दी जल्दी इस्माइल, जल्दी बताओ। हेलो, सर कौन इलाफ? क्या कह रहे हो? सर इलाफ कौन है? ओहो, दुआ। दुआ कहाँ है? दुआ, दुआ मौजूद है? यस सर। दुआ जल्दी बताओ, इसकी कोडोमेन क्या है इस फंक्शन में? जल्दी। सर हॉकी, सॉकर, टेनिस। वेरी गुड। और मुझे ये बताओ आगा, इस सेट में रेंज क्या है? सर 3। रेंज रेंज, मैंने रेंज का बताया था। आगा, जो डोमेन एलिमेंट्स यूज करेगा वही रेंज कहलाएगी। तो इस वक्त रेंज है हॉकी और सॉकर। ये डिफरेंस है कोडोमेन में और रेंज में। आगा बात समझ आ गई? जल्दी, आगा जल्दी बताएं। हेलो, नहीं सर पता चलेगा। यानी आगा, जो एलिमेंट्स कोडोमेन के डोमेन यूज करेगा, यानी लिंक करेगा, वो हमारे पास रेंज कहलाएंगे। ये जहन में रहेगा। हेलो, यस सर। देखो इसने इसको यूज नहीं किया तो मैंने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया, मगर कोड डोमेन में सब कुछ होगा, कोड डोमेन तो पूरा सेट होगा। अच्छा यार वाजिद, आई डोंट नो, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ भाई, ये फंक्शन है या रिलेशन है, जल्दी बताओ। सर ये रिलेशन है। सर ये रिलेशन। अगर ये रिलेशन है तो डेफिनेटली इसकी भी डोमेन होगी, इसकी भी कोड डोमेन होगी, और इसकी भी रेंज होगी। तो इसकी डोमेन आपके पास ए बी है, कोड डोमेन हमारे पास इसकी है मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी।
और जो यूज हो रहे हैं, मजे की बात, सारे यूज हो रहे हैं। तो इस वक्त कोडोमेन और रेंज बिल्कुल बराबर है। बेटा जान, जिसको बात समझ आई है थम्स अप कर दो जल्दी से। होपफुली होपफुली होपफुली। इसका प्रैक्टिस नाउ मैंने पीडीएफ आपको सेंड किया, तो प्रैक्टिस नाउ आप खुद से कीजिएगा। आई एम मूविंग फर्दर। ओके भाई यार, फंक्शन के नोटेशन को भी देख लेते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। ओके यार, इस्माइल जल्दी बताना, ये फंक्शन है या नहीं? सर ये फंक्शन ये फंक्शन है। तो इस्माइल बताना डोमेन क्या है मेरे पास। 1 2 3 और मुझे बताना रेंज क्या है। 1 2 3। इस्माइल 1 2 3 डोमेन है। 1 2 3 4 और रेंज क्या है? 4 5 6 7 ओके यार, आगा मुझे बताना कोडोमेन क्या है इसमें। सर 1 2 3 4 5 6 7 8। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। अब इसकी नोटेशन, फंक्शन की नोटेशन कह रहे हैं यार, ये दो सेट्स के दरमियान एक लिंक है, एक किस्म का कोई रूल है एक्स और वाई के दरमियान। ये इसकी नोटेशन इसने बताई है। चलें, ये मैंने सारा डिस्कस कर दिया नोटेशन। आई एम नॉट गोइंग। अच्छा, जरा इसकी लैंग्वेज और थोड़ा मॉडिफाई कर दूं। ये लैंग्वेज दोस्तों, फंक्शन की जबान में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये फंक्शन की जबान में, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या होगा? ये रूल है जो एक्स के एक्स सेट के एलिमेंट्स पे लगेगा और मैप करेगा वाई के पास। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एफ ऑफ 1 की बात करूं, यानी इस x, और ये जो x है ये बिलोंग्स कर रहा है पहले सेट से, और ये जो y है ये बिलोंग्स कर रहा है दूसरे सेट से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 किस पे मैप कर रहा है? 4 पे। तो y का आंसर क्या आ जाएगा? 4। दोस्तों ये बात समझ आ गई? ये नोटेशन समझ आ गई? हेलो। यस यस सर। सर अच्छा, जल्दी से बताना एफ ऑफ 4। यार वाजिद, एफ ऑफ 4 किसके बराबर है? वाजिद, एफ ऑफ 4 किसके बराबर है? जल्दी वाजिद। ओके, वो बहन की। ओके, आगा एफ ऑफ 4 किसके बराबर है? सर 7। वेरी गुड, दैट मीन्स, चलें भाई, आपको नोटेशंस भी समझ आ गई है कि इसको यूज कैसे कर रहे हैं। दैट्स रियली गुड। स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे डेफिनेटली, तो हमें मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, रेंज के बारे में मैंने बहुत डिस्कस कर लिया। अच्छा बच्चों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से ये 1 2 3 4 5 6 समझो। ये फंक्शन की, ये देखो, ये फंक्शन की नोटेशन है, ऐसे लिखा हुआ है फंक्शन। ये डोमेन का एलिमेंट है एक्स से, और ये एक किस्म का उसका रूल है, यानी फंक्शन है। ये ए सेट है और ये बी सेट बनाएगा जब मैं एक्स के एलिमेंट पुट करूंगा, एक्स के एलिमेंट पुट करूंगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2। ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों बात समझ आ गई? जिसको बात समझ आ गई थम्स अप कर दो जल्दी यस जल्दी। सर थम्स अप कर दो, मैं जरा सबका देखूं, क्योंकि किसी की आवाज आ रही है, किसी की नहीं आ रही। ओके, दो इलाफ को भी हो गया। ठीक है, तो यार फिर मुझे बताना इस्माइल, इसको कैसे लिखूं? इसको इस लैंग्वेज में कैसे लिखूं इस्माइल, इस वाले भाई साहब को? सर जी ऑफ एक्स कैसे रीड करते हैं इस्माइल? जी जी ऑफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इज इक्वल बताइए। टू 5x minus 4 वेरी गुड। अच्छा जी, भाई एफ ऑफ 2, यहाँ 2 पुट करके आंसर निकाला, यानी एक्स की जगह यहाँ 2, यानी एफ ऑफ 2 की बात करूं, जैसे ये दिया हुआ है एफ ऑफ 2, तो इसने क्या किया है? एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x+2। इसका मतलब इसने एक्स की जगह 2 पुट किया है खाली, और 2 3 जा 6 + 2 यानी 8। दोस्तों सबको बात समझ आ गई? जिसको बात समझ आ गई थम्स अप कर दें जल्दी, थम्स अप कर दें जल्दी जल्दी। ओके जी, अगर नहीं समझ आए तो फिर हैंड रेस कीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा। अब ये सारे के सारे ऐसे ही वैल्यूज पुट किए, सिर्फ मैं दे रहा हूं आपके पास 30 सेकंड। ये सब के सब सॉल्यूशन, ये क्वेश्चंस हैं, इसके सॉल्यूशन देख लो उन्होंने किए हैं।
हर सोल्यूशन को देखना बच्चों, हर सोल्यूशन को देखना, एक सोल्यूशन को भी नहीं छोड़ना। ओके बच्चों, जिस जिसको बात समझ आ गई थम्स अप कर दें। दैट्स गुड। ये जस्ट वैल्यूज पुट की हैं फंक्शन में, ये स्पेसिफिक वैल्यूज पुट की और कुछ भी नहीं किया। दिस इज रियली वेरी सिंपल प्रोसेस, और लैंग्वेज के साथ मैंने आपको कंफर्टेबल किया है इसकी। अच्छा, इसमें जो एक मजे की चीज है, चलो मैं ये आपको करके दिखाता हूँ ताकि एक दफा पूरा वर्किंग हो जाए। अच्छा भाई, थोड़ा तेज करूंगा क्योंकि अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ऊपर देख के आए हो सोल्यूशन किस तरह से हो रहा है। ओके, एफ ऑफ एक्स आपके पास है, तो मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स आपके पास है 10x + 4, और आपके पास g ऑफ x है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे वैल्यूज लिखनी होंगी। ये आपके पास 4x - 6, 4x - 6। ओके, नाउ वैल्यूज पुट कर लेते हैं, थोड़ी गंदी सी वैल्यू पुट करते हैं। 4 ठीक है, -7 ठीक है, ये माइनस के 2/3, यानी अगर माइनस के 2/3 पुट करूंगा तो सिंपल क्या करूंगा, x की जगह माइनस के 2/3 + 4 कर देता हूं। ओके, 10 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -3, 20, 3 वैसे ही रहेगा, +4 और 3 एलसीएम, -20 वैसे ही रहेगा, जिसके पास एलसीएम नहीं उससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और आंसर आ जाएगा -17/3। दोस्तों बात समझ आ गई है? हेलो, जिस जिसको बात समझ आ गई थम्स अप कर दें। सर सर ये -8 20, होगा। सर 20 + 12 कैसे आया? 12, 3 4 12 और -8 ठीक है, थैंक यू दुआ। हाँ जी भाई, ये एलसीएम लिया मैंने दोनों का, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम 3, जिसके पास नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इस्माइल बात समझ आ गई? हेलो हेलो। यस सर। ओके, अच्छा, मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी ऐसे क्वेश्चन में जिसमें जरा अलजबरा इसने कुछ डिफरेंट की हुई हो, जैसे कि ये दे दो, कहता है चलो ये भी f ऑफ 1/2 + g 1/2 ये भी करते हैं, f ऑफ 1/2 + g 1/2, इसका मतलब है f ऑफ x में 1/2 पुट करें, यानी यहाँ 10 x की जगह 1/2 + 4, और g ऑफ 1, ये g ऑफ x है, इसकी जगह आप x की जगह 1 पुट करें, तो ये हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 + 4, 4 - 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 यानी -1, 8 यानी 7, फाइनली आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, और ये जो इसने कुछ लैंग्वेज यूज की है इसको भी हेल्प आउट कर देते हैं। कहता है x फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, x फाइंड करो, x फाइंड करो जिसके लिए f ऑफ x और g ऑफ x बराबर हो, यानी ऐसी x की वैल्यू फाइंड करो जब मैं यहां पुट करूं और यहां पुट करूं दोनों का आंसर सेम आए, सेम आंसर आए, तो मैं कहूंगा भाई f ऑफ x g ऑफ x के बराबर। ओके, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, f ऑफ x क्या दिया हुआ है 10x + 4, g ऑफ x क्या दिया हुआ है 4x - 6, ये मैंने बराबर कर दिया। मैंने अलजबरा आपको इसलिए करवाया था क्योंकि ये चीजें आपके पास आएंगी, तो 4x को यहाँ शिफ्ट करूंगा और 4 को वहां ले जाऊंगा, दैट मीन्स 10x - 4x इज इक्वल टू -6 - 4, यहाँ बच जाएगा 6x, और यहाँ बच जाएगा -10, और x बराबर हो जाएगा -10/6, और x की वैल्यू आ जाएगी -5/3। बच्चों बात समझ आ गई? हेलो, यस सर। अब ये यस सर। x की वैल्यू यहाँ पुट करूं या यहाँ पुट करूं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली इसने एक और बात बोली है, इसने कहा है
x आगा बात समझ आई थी? आगा आगा यस सर, समझ में आ गया। ओके। अब ये कह रहा है मुझे वो x की वैल्यू बताओ जब मैंने f ऑफ x में पुट किया होगा तो आंसर 34 आ गया होगा। यानी कह रहा है मुझे वो x की वैल्यू बताओ जब मैंने पुट किया होगा f ऑफ x में तो आंसर 34 आ जाएगा। तो f ऑफ x ये है मेरे पास, यानी 10x प्लस 4। आंसर मुझे किसके बराबर चाहिए? 34 के। 4 वहां शिफ्ट करूंगा, 10x बराबर हो जाएगा 34 माइनस 4। 10x बराबर हो जाएगा आपके पास 30 और x का आंसर आ जाएगा 3। यानी भैया अगर 3 पुट कर लोगे यहां पर तो आंसर 34। आप चेक कर सकते हो, यहाँ 3 पुट करोगे ये हो जाएगा 30 प्लस 4 34 हो जाएगा। बच्चों बात समझ आ गई? हेलो हेलो यस हेलो। सर। यस सर। ओके, होपफुली होपफुली जल्दी जल्दी मूव कर लेता हूं। ओके बच्चों, 2 मिनट ले लो और इस सॉल्यूशन को समझो। 2 मिनट ले लो और इस सॉल्यूशन को समझो। ओके बच्चों, जिस जिसको बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लें। हेलो। अच्छा, ये आगा को डिफिकल्टी है? आगा डिफिकल्टी है? आगा नो सर, समझ में आ गया। अच्छा हैंड रेस किया, ठीक है यार, मेरी लैंग्वेज सॉरी। दुआ इलाफ बात समझ आ गई? दुआ इलाफ जल्दी बेटे, दुआ इलाफ। अरे यार दुआ इलाफ सर क्यों जा पढ़ रहा हूँ? रही हूँ अभी। अच्छा अच्छा, दुआ इस्माइल होना चाहिए। उफ सर दुआ इरफान लिखा हुआ है। यार, दुआ स्टूडेंट्स बहुत होते हैं ना। अब आपके नाम की एक स्टूडेंट है दुआ इलाफ, तो बस वो निकल गया मुंह से। ठीक है, दुआ जल्दी करो बेटी, जल्दी करो, सिलेबस बढ़ा है, जल्दी जल्दी करो। सर बस आप आगे बढ़े, बात पढ़ लीजिए। ठीक है जी दोस्तों, अब ये चाहो तो कर लो, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, चाहो तो ना भी करो, कोई मसला नहीं। बल्कि कर लो तो अच्छा है, पर ये सारे नहीं, इतने सारे करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम इंटरमीडिएट लेवल तक चले जाना अगर तुमने करने होंगे सॉल्व, ठीक है। एडवांस में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन हम करने ही हमने वहां पर, तो मैं उस पर टाइम तुम्हारा जाया नहीं करवाता हूँ। अब आ गया फर्दर, यानी अब ये D4 का आ गया है। अब जब ये D4 हो जाएगा बच्चों, तो मैं जाऊंगा फिर टॉपिकल पास पेपर पे, और फिर हम जितने भी क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 के आए हुए हैं फंक्शंस के, यानी पेपर 1 वाला भी और पेपर 2 वाला भी, इस चैप्टर से जो भी आए हुए हम वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे, और फिर फाइनली हम फंक्शन की दुनिया से बाहर आ जाएंगे। फिर जिस दुनिया में मुझे आपको लेके जाना है मैं उस दुनिया में आपको लेके जाऊंगा। यानी मैं एक पैटर्न के साथ चल रहा हूं ताकि आपको चीजें मुश्किल ना लगे। मैं ऐसे सीक्वेंस से चल रहा हूं कि अगला चैप्टर प्रीवियस चैप्टर को सपोर्ट करेगा, यानी किसी ना किसी तरीके से ना अगला चैप्टर आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका प्रीवियस चीज पढ़ी हुई होगी। अच्छा जी, अब मूव कर जाता हूँ यहाँ। पहले पहले तो स्टार्टिंग में आप ऑलरेडी ये वही चीजें करोगे जो आपने अभी पढ़ा था। तो दोस्तों ये अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था इसको रीड करो,
ये वही वाली बात है। अच्छा, इसने ऊपर कुछ दिया नहीं, हाँ रिकेप ही है। जरा देखना इसको 2 मिनट देख लेना। एग्जाम्पल 1 के सोल्यूशन शायद ऐसा ही मैंने कुछ अभी आपसे रीड करवाया है। अब ये D4 पे आ गया हूं। हाँ भाई बच्चों, बात समझ आ गई? ये वही बात है जो हमने यस पहले सर। डिस्कस, बिल्कुल Yes, सेम टू sir. सेम वही Yes, बात। sir. यानी उसने क्या किया, उसने लिखा भी है कि हमने एक किस्म का रिकैप किया है ये, तो मैंने सिर्फ कनेक्ट किया तुम्हें। अब इशू यही होता है, दरअसल बेवकूफों की तरह पढ़ाया जाता है। एक कॉन्सेप्ट को पूरा एक पढ़ाओ, D1 में जो हो, D3 में हो, D4 में, सब एक साथ पढ़ाओ, तब जाके फिर टॉपिकल पास पेपर सॉल्व करो, आपकी जान छूट जाती है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है आपके पास। ये वाला भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। मुझे याद है दुआ मुझे बार बार बोल रही थी मेरा क्वेश्चन चेक करें, मेरा क्वेश्चन चेक करें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया है। अब अनफॉर्चुनेटली इसका आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया है जो इनवर्स है। इंशाल्लाह कल वो हम कवर करके टॉपिकल पास पेपर स्टार्ट करेंगे, पर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा दोस्तों। विद इन 2 डेज ये चैप्टर वाइंड अप करके मेनली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी ग्राफिंग में जाएंगे। सबके सब अपने ग्राफ पेपर को आगा और वाजिद ग्राफ पेपर ले लिए? यस सर, ग्राफ पेपर पढ़ें। ठीक है, व्हाट अबाउट आगा, वाजिद बल्कि? यस सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आई होप सरमद जल्द ही हमें ज्वाइन करें, रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा अपलोड करके। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।